Starting with the big story, the BJP and the VHP took out an Akrosh rally in Alwar to protest against the demolition of 3 temples and shops in an anti-encroachment drive in Rajgarh. In last week's demolition drive, 3 temples, 86 shops and homes were demolished in Rajasthan's Alwar district. The officials described the action as part of an anti-encroachment drive to widen a road in Rajgarh. But what fueled the rally further is the fact that a 300-year-old Shiva temple was among the temples demolished. Now the protesters are demanding reconstruction of the temples at the same site, an apology from the state government and strict action against the officers who are involved in this. आज की लड़ाई कांग्रेस सरकार के खिलाफ है। मुगलिया शासन जो कांग्रेस सरकार कर रही है उसके खिलाफ है। व्यक्तिगत तौर पे पूछे तो मैं अधिकारियों को अधिकारी तो यूपी में भी है ना, और यूपी में तो भाजपा की सरकार बहुत लंबे समय के बाद आई है। वही अधिकारी यूपी में काम कर रहे हैं, लेकिन यूपी में कैसे प्रकार से एक अच्छा शासन चल रहा है, अच्छी योजनाएं चल रही है, पारदर्शी रूप से चल रही है, किसी का भेदभाव नहीं होता। अधिकारी होता है, अधिकारी तो अपने कर्तव्य के प्रति होता है, लेकिन सरकार की सोच के साथ अधिकारी चलता है। जैसी सरकार वैसी सोच अधिकारी की हो जाती है, और सरकार की सोच के साथ मजबूरन अधिकारी को काम करना। राजनीति का शिकार हुए हैं ये बिल्कुल हुए हैं, इसमें राजनीति का शिकार हुए हैं। और कांग्रेस सरकार की नीति ही ऐसी रही है कि ये एक तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। अरे हम तो कहते हैं कि ये सबसे बड़े, एक तरह से मैं कहूँगा कि शासक जो है, इस मुगलिया शासक अशोक गहलोत इस्तीफा देते तो काम ही हो जाए, और सोनिया गांधी देते तो महाकाम हो जाए। We're keeping our focus on the big story. Aishwarya and Bhavar join us on this broadcast. Aishwarya, to you first. There are specific demands that the Hindu groups had with the Gehlot government. They protested against the demolition of the temples, but they have placed some demands in front of the Congress government in Rajasthan. Well, that's right. Massive protest staged today by the Bharatiya Janata Party along with Hindu Sangatans, which includes the VHP, Bajrang Dal and also the Karni Sena, and they clearly stated that Ashok Gehlot should resign from his position, and they also demanded the local Congress MLA Johari Lal Meena to give his resignation as well. One thing which is straightly pointed out by the protesters over there is that when in the board meeting, the BJP chairperson Satish Duaria was there, to which the Rajasthan government had issued a suspension notice, and he suspended. When Congress MLA was also there, why not action is being taken against him as well? So his resignation is also that the Rajasthan government should ask as a Congress MLA. Apart from it, the demands were very clear that the temple which was demolished during the anti-encroachment drive on April 17th should be rebuilt at that point of place, and the memorandum was later on submitted to the collectorate, which will be later forwarded to the governor. But it has been very clear by the protesters today, including the Bharatiya Janata Party, a member of parliament from Alwar, Mahanta Balaknath, that till the time the resignations and the mandir will not rebuild, the protest will go on against the Ashok Gehlot government. It is just not about what happened in Rajgarh, but also what is certainly happening in different parts of Rajasthan, including the demolition of the Gaushala near Alwar as well. Okay, all right. Stay with us. We have some reactions as well. As the protest was taking place, those who were part of this protest were vocal about the demands that they have and the charges against the Rajasthan government. Let's listen in. हमारी मांगे हैं, जो सरकार ने हिंदू समाज का अपमान किया है, हमारे देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित कर जिस प्रकार का जघन्य अपराध किया है, इस सरकार को कभी भी माफी नहीं मिलेगी। और हम अपने जन जागरण भाव से और सरकार पुनर्निर्माण का करवाए उस भाव से हमने ये कार्यक्रम का सर्व समाज ने आयोजन किया। इस प्रकरण में जितने भी अधिकारी शामिल है, जिन्होंने अपनी ड्यूटी में रहते हुए अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है, उन्हें सरकार जल्द से जल्द निलंबित करे। और सनातन धर्म के जितने भी मंदिर है, आस्था के केंद्र है, जिस तरीके से कांग्रेस सरकार बार बार कुठारघात कर रही है, तोड़फोड़ कर रही है, उसका गौशाला मंदिर को तोड़ने का जो दुस्साहस गहलोत सरकार ने किया है, उसको हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। अब हिंदुस्तान की सड़कें हिंदुओं के जोश से, रोज से भरी पड़ी है। हम चाहते हैं अगर दुस्साहस करना है तो उन अवैध मजारों पे करो जो
हाईवेज के उल्टे और सीधे हाथ को बनी हुई है। केवल सस्पेंड करना पर्याप्त नहीं है, टर्मिनेट करना चाहिए उनको, नौकरी से हटा देना चाहिए। वो नौकरी करने लायक नहीं है, जिनको नौकरी करनी नहीं आती उनको टर्मिनेट करना चाहिए। सस्पेंशन कोई बड़ी बात नहीं है। प्रशासन को सरकार के अंतर्गत काम करना चाहिए। अब वो प्रशासन के ऊपर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, जबकि वास्तविक जिम्मेदारी सरकार की है। नहीं तो प्रशासन तो वही काम करती है जो सरकार उसको। हम भी वही कह रहे हैं, ये काम प्रशासन ने नहीं किया, ये सरकार ने किया है, इसलिए हम सरकार से इस्तीफा मांगते हैं। आपका कहना है कि जो ऑफिसर सस्पेंड हुए हैं वो राजनीति के शिकार हुए हैं, राजस्थान गवर्नमेंट की राजनीति। हाँ, तो वो उनको बना बलि का बकरा बना रहे हैं। वास्तव के अंदर राजस्थान सरकार इसके लिए दोषी है। जवाहरीलाल मीणा जो एमएलए है, सब उसके साल है, उसको पता है सारे वोट बीजेपी के थे। एक तीर से दो निशाने किए उस आदमी ने, तो एमएलए का इस्तीफा होना चाहिए। हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। आज की जो ये घटना हम पिछले समय में देख रहे हैं कि 300 साल पुराना जो मंदिर है वो ढा दिया गया कांग्रेस सरकार की ओर से, और उसके बाद जहां पर 400 से ज्यादा गौएं थी गौशाला में, वो गौशाला को भी तोड़ दिया गया है। ये जो राजस्थान सरकार है ये दिखाना चाह रही है कि हिंदुओं पर अत्याचार करेगी और हिंदू चुप करके बैठेंगे, मगर आज जो समय आ गया है कि हुण हिंदू चुप करके नहीं बैठेगा, हिंदू हुण मुंह तोड़ जवाब देगा। हमारी मांग है कि राजस्थान सरकार ने जिस तरह तुष्टीकरण की नीतियां अपनाई हुई हैं, आप देख रहे हैं कि हिंदुओं के धार्मिक जुलूसों पर जिस तरह पत्थरबाजी आगजनी होती है, और राजगढ़ में 300 साल पुराना जो मंदिर तोड़ा गया है, ये सिर्फ 3 लोग वो चेहरे हैं जिनको सस्पेंड किया गया है। असली इनके पीछे वहाँ का विधायक जवाहरीलाल मीणा मौजूद है। प्रशासन उनके इशारे पर काम कर रहा है, और जवाहरीलाल मीणा भी एक चेहरा है प्रदेश के सरकार का मुखिया। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस एमएलए जवाहरीलाल मीणा की तर्ज पर भी ये सारा काम हुआ है, और जवाहरीलाल मीणा को भी सस्पेंड करना चाहिए, उनका इस्तीफा लेना चाहिए गहलोत सरकार को। So this was the Akrosh rally and that was the kind of anger on the streets as well. भंवर भी हमारे साथ हैं। भंवर, ये एक पॉलिटिकल रैली तो थी, लेकिन इन्होंने जो मांग की है वहां के रेजिडेंट्स की भी यही मांग है कि मंदिर वहां पे फिर से बनाना है। जी बिल्कुल, जो लोकल लोग हैं उनका ये मांग है कि वहाँ पर मंदिर बने। उसके अलावा जो मार्केट तोड़ा गया है, मार्केट वहाँ पर डेवलप हो ताकि लोगों की आजीविका चल सके, क्योंकि वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास और दूसरी नौकरियाँ नहीं हैं, सिर्फ उन दुकानों के भरोसे उनकी आजीविका चल रही थी। कई लोग तो ऐसे थे जिनको अभी दुकान का मुहूर्त लगना था, उससे पहले दुकानें टूट गई, तो वो लोग बेघर भी हो गए, घर भी टूट गए, मंदिर चले गए, आस्था जो है वो चोटिल हुई। ऐसे में अब ये लगातार मांग की जा रही है कि वहाँ पर जो मुआवजा है वो अच्छे से मिले, मंदिरों का वापस निर्माण हो, और साथ ही साथ जो नगर पालिका है उसके जो चेयरमैन हैं उनको हटाया गया है। तो भाजपा ये विरोध कर रही है कि उनको हटाने के बजाय विधायक पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्योंकि ऐसे ही एक प्रस्तावित मीटिंग में खुद जवाहरीलाल मीणा विधायक उसमें शामिल रहे। साथ ही उन्होंने जिस तरीके से बात कही थी कि अगर उनका बोर्ड होता या बाकी लोगों को आप ला करके उनका बोर्ड बना देंगे तो शायद ये कार्रवाई टल जाएगी। तो ऐसे में उनकी मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि क्या विधायक जिम्मेदार नहीं है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ राजनीतिक द्वेषता के चलते जो चेयरमैन हैं नगर पालिका के, उन्हीं के ऊपर कार्रवाई की गई है। हालांकि 2 अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई है, और उस कार्रवाई के बाद ये कह सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से टाइम्स नाउ ने खबरें दिखाई तो सरकार बैकफुट पर आई और अपने आप को बचाने के लिए अधिकारियों पर कार्रवाई करती सरकार नजर आई, और दूसरे निशाने से उन्होंने भाजपा पर भी कार्रवाई की, क्योंकि भाजपा के जो चेयरमैन हैं नगर पालिका के, उनको भी हटा दिया गया है। Okay, all right. We'll keep our focus on what's happening.